أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا، وأمنا اور لوگوں کے لیے امن امان اور حفاظت کی جگہ بنایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، وعہدنا، اور ہم نے وعدہ لیا، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا، ان طہر بیتی، میرے گھر کو یہ دونوں صاف کریں، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے بسنے والوں کو پھل عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان لاوے، آخرت کے دن پر ایمان لاوے۔ قال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ومن کفر فأمتعه قلیلا، جو کفر کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، آخرت کے دن کا انکار کرے گا، اس کو بھی میں تھوڑا بہت فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا، اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار تو ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک، بنا دے ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کرتے ہیں کہ بنا دے ہم دونوں کو تیرا تابعدار اور تیرا فرما بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کے اندر میں سے بھی بنا دے امتاً مسلمتاً لک، تیری تابعداری کرنے والی امت، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا،
اور باری تعالیٰ ہم کو ہمارے حج کے احکام اور مقامات بتلا، وتب علینا اور ہماری طرف متوجہ ہو جا، ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتک، باری تعالیٰ ان کے سامنے وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب یعنی قرآن پاک اور حکمت یعنی احادیث یا دانائی کی اور عقل مندی کی باتوں کی وہ تعلیم کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے گا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ تلاوت کے بعد میں ترجمہ بھی کر دیا گیا تاکہ ذہن کے اندر میں آئے اور سمجھ میں آئے کہ اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا مضمون ذکر کیا ہوا ہے۔ کل ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان کے اندر میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ وعدہ فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یاد کیا۔ یہ ایک آیت کی تفسیر کل بیان کی تھی، اس کے اندر میں ایک بات اور بھی رہ گئی تھی کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر میں لکھا ہے کہ آدمی اپنے آپ کی صرف فکر نہیں کرتا بلکہ اپنی اولاد کی بھی فکر کرتا ہے۔ دیندار لوگ جو ہوتے ہیں اپنے دین کی فکر کرتے، دنیا دار ہوتے ہیں وہ دنیا کی فکر کرتے۔ آدمی کا جیسا مزاج دینی یا دنیاوی بنا ہوا ہوتا ہے اس طور پر وہ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، انبیاء علیہ السلام کے باپ دادا ہیں، اور مزاج تو ظاہر بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر کے اور رسول سے بڑھ کر کے کسی کا دینی مزاج نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا جو دینی مزاج بنتا ہے وہ رسول کا بنتا ہے، نبی کا بنتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کو نبوت دینے کے بعد، رسول کو رسالت دینے کے بعد سب سے پہلے اس نبی کے لیے اپنی ذات کے اوپر میں ایمان لانا ضروری ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے پہلے وہ ایمان لاوے۔ اور رسول کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے اپنی ذات پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی لیے مکتب کے اندر میں ہم کو یہ سکھلایا جاتا ہے کہ مردوں کے اندر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے سب سے پہلے، عورتوں کے اندر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی، اور بچوں کے اندر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی وغیرہ بتایا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ ایمان لائے اپنی رسالت پر، اپنے نبوت کے اوپر میں۔ تو نبی کا مزاج دینی ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کے لیے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یاد کیا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میری اولاد کے اندر میں سے بھی امامت ان کو ملنی چاہیے اور وہ بھی امام بننے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو امامت کا جو منصب ہے یا امامت کا جو مقام ہے یہ کوئی خاندانی چیز نہیں ہے، یا نسب اور خاندان کی وجہ سے نہیں دیا جاتا، یہ تو صفات کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ جو صفات تمہارے اندر میں ہے وہ صفات اگر تمہاری اولاد کے اندر میں بھی ہوں گے تو تمہاری اولاد امام بنے گی،
اور جو صفات تمہارے اندر میں ہے اگر وہ تمہاری اولاد کے اندر میں نہیں ہوں گے تو یہ امامت تم سے چھین لی جائے گی. امامت کا مقام اور امامت کا جو منصب ہے وہ چھین لیا جائے گا. تو ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ مفتی صفی صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے اور نبی اور رسول اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر میں گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا, معراج کے اندر میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا بھئی ہمارے لیے کیا لائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کے اندر میں 3 چیزوں کا ذکر ہے جو ہم نماز کے اندر میں تشہد پڑھتے ہیں, التحیات پڑھتے ہیں درود شریف سے پہلے. یہ التحیات کہ جتنی بھی قولی عبادتیں ہیں, جتنی بھی زبانی عبادتیں ہیں, ہم زبان سے عبادتیں بہت کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, اور خیر کی باتیں اور بھلائی کی باتیں زبان کے ذریعہ سے کرتے ہیں. التحیات تمام قولی اور زبانی عبادتیں, التحیات للہ سب اللہ کے لیے ہے. والصلوات اور تمام جانی عبادتیں, والطیبات تمام مالی عبادتیں, یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیا کہ قولی, فعلی اور مالی ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں. تو یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک, سلامتی نازل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, علیک تجھ پر اے نبی, السلام علیک ایھا النبی اے نبی, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ پر نازل ہو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں. اب ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. مفتی شفیع صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی کی, رحمت کی اور برکت کی نازل ہونے کا حکم دے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا. یعنی معراج کی رات جب عرش بری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھولے نہیں. اس لیے آگے التحیات میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مجھ پر نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا تھا السلام علیک, آپ پر سلامتی نازل ہو اے نبی, اور آپ پر برکت نازل ہو اور آپ پر رحمت نازل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مجھ پر نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا, اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو ہم سب پر, یعنی مجھ پر بھی اور میری امت کے اوپر میں بھی, وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. تو حضرت مفتی شفیع صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امامت کا مقام اور منصب جب ملتا تھا اپنی امت کو یاد کیا, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر میں اپنی امت کو یاد کیا. اچھا, دوسری بات جو ایک بتانا باقی رہ گئی اس آیت کی تفسیر کے اندر میں وہ یہ تھی, جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ امامت کا منصب اور مقام یہ خاندانی طور پر نہیں ہے, رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے کہ نبی کی اولاد ہے تو وہ بھی نبی بنے یا نبی کی اولاد ہے تو وہ جنت کے اندر میں جائے, ایسا نہیں ہے. ہمارے سامنے قصے موجود ہیں, نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی انکار کیا اپنے باپ کی رسالت کا اور نبوت کا, ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے انکار کیا. تو یہ خاندانی چیز نہیں ہے, یہ جو منصب ہے یہ ملتا ہے صفات کی بنیاد پر. اس پر علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے
इसहाक और इस्माइल और इसहाक के बेटे याकूब और उनके बेटे बनी याकूब या बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक उनको मौका दिया कि दुनिया की इमामत तुम करोगे और दुनिया के मुक्तदा तुम बनोगे, दुनिया के पेशवा तुम बनोगे और तुम लोगों की इमाम कहलाओगे, लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे। लेकिन उन्होंने उस मनसब को निभाया नहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, नबियों को कत्ल किया और अल्लाह की उतारी हुई किताबों का इनकार किया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत को छीन लिया। मनसब इमामत और मनसब नबूवत जो बनी इसराइल के अंदर में जो चलता था, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ से हटाकर अब बनी इसराइल के अंदर में डाल दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर में पैदा हुए। ये यहूद और नसारा को अच्छा नहीं लगा, हसद की वजह से उन्होंने इनकार किया। ये तफसील के साथ में पहले भी ये बात अर्ज़ की जा चुकी है। उलमा लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मनसब इमामत अब बनी इस्माइल के अंदर में बाकी रखा और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मनसब इमामत बाकी रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल के अंदर में और सदक़े के अंदर में वो काम हमें और आपको मिला जो नबियों का हुआ करता था, यानी दावत और तबलीग का काम। दावत और तबलीग का काम नबी का काम, उम्मत का काम नहीं। इसलिए अगली उम्मतों के अंदर में दाई सिर्फ नबी होता था, उम्मत दाई नहीं होती थी। इस उम्मत की खुसूसियत है उम्मत मुहम्मदिया की कि अल्लाह के नबी भी दाई और आपका जो भी उम्मती है ये भी दाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दो किस्म की, एक उम्मत दावत और दूसरा उम्मत इजाबत। उम्मत इजाबत का मतलब है कि जिसने अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन को कबूल किया, यानी हमारी इस्तिलाह के अंदर में मुसलमान और मोमिन, ये उम्मत इजाबत है। और जो लोग ईमान नहीं लाए, यहूद है, नसारा है, मजूस है, सिख है, ईसाई है और काफिरीन है या नास्तिक है, देहरिये हैं, जो भी रुए ज़मीन पर बसने वाला जो भी इंसान है, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। ये उम्मत दावत कहलाती है। उम्मत इजाबा के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह का दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पैगाम उम्मत दावत तक पहुँचाए। बहुत से लोग आज भी ऐसा कहते हैं कि इतनी अच्छी बात थी, आज तक तुमने हमको बताया नहीं। व्हाट्सएप पर वगैरह के ऊपर में भी आता है, हिंदू लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी बातें थी, आपने हमको बताया नहीं। बहरकैफ ये उम्मत दावत की इजाबत की जिम्मेदारी है कि उम्मत दावत तक इस बात को पहुँचावे। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब नबियों के इमाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, उनकी औलाद के अंदर में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन और ईमान की दौलत से नवाजा और क़यामत तक के लिए यही दीन और यही ईमान बाकी रहेगा। नबी की नबूवत जब तक बाकी रहती है, वहाँ तक नबी का मौजिज़ा बाकी रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन क़यामत तक बाकी रहेगा। तो ये कुरान पाक जो है ये मौजिज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये कुरान पाक क़यामत तक के लिए बाकी रहेगा और अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, एक नुक्ते की भी उसके अंदर में कोई तब्दीली हो सकती नहीं है। वही जअलनल बैता। अच्छा, तो अब ये जो मकाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया, क्यों दिया गया? कुर्बानियों की वजह से। कल मुख्तसर अंदाज के अंदर में जिक्र किया था। बड़ी उम्र के अंदर में एक बात कल भी रह गई कुर्बानियों के अंदर में कि बड़ी उम्र के अंदर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खतना करने का हुक्म आया बड़ी उम्र के अंदर में, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी इस पर भी अमल किया। तो इतने कुर्बानियों के नतीजे में और बैतुल्लाह के बनाने के नतीजे के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब इमामत से नवाजा था। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर में फरमाया, वइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासी। और याद करो जबकि हमने बैतुल्लाह को लोगों के जमा होने की जगह बनाया और अमन और हिफाजत की जगह बनाया। इस पर बैत का जो लफ्ज़ है, बैत यानी बैतुल्लाह, ये सिर्फ बैतुल्लाह जो है
इतना ही जो है वो जमा होने की जगह नहीं है, या इतनी ही जो चीज़ है ये अमन अमान की जगह नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा है कि बैत से मुराद हरम शरीफ, पूरा जो हरम शरीफ है ये पूरा ये बैत के अंदर में दाखिल है। तो आप जानते हैं कि हुदूद जो है, हुदूद मिकात दो तरह का है, एक हिल है हिल और दूसरा है हरम। ये जो जद्दा है या खलीस है और मक्का मुकर्रमा की जो हुदूद हरम है, जहाँ से हरम बांध करके हम जाते हैं, उससे बाहर का जो हिस्सा है ये हिल कहलाता है। जिद्दा हिल के अंदर में है। अगर आप यहाँ से जाते हैं उम्रा करने के लिए या जाते हैं हज करने के लिए और आपको जाना है मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा जाना नहीं है, तो आपके लिए हरम बांधना ज़रूरी नहीं है। जिद्दा उतरे और जिद्दा उतर करके सीधे मदीना मुनव्वरा चले जाएं इन्हीं कपड़ों के साथ में, इसलिए कि जिद्दा जो है वो हिल के अंदर में दाखिल है। लेकिन अगर कोई बराह रास्त डायरेक्ट अगर मक्का मुकर्रमा जाना चाहता है तो उसके लिए यहीं से एहराम बांधना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हवाई जहाज़ के ज़रिया से जब हम जिद्दा जाते हैं तो यलमलम का जो मीकात है ये यहाँ से हम गुज़रते हैं। अब जाहिर बात है कि अगर एक रास्ते के अंदर में अगर दो मीकात गुज़रते हों तो दूसरे मीकात से एहराम बांधने में कोई हरज की बात नहीं है। एक आदमी हिंदुस्तान से निकले, जिद्दा जाओ, फिर मदीना मुनव्वरा जाने का उसका इरादा है, मदीना मुनव्वरा से वापस जुल्हुलैफा से वो एहराम बांध करके आएगा, यलमलम से उसके लिए एहराम बांधना ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर मक्का मुकर्रमा जाना है तो फिर एक ही मीकात आता है यलमलम वाला, और वहीं से हवाई जहाज़ गुज़रता है, पसार होकर के उड़ता हुआ जाता है, इसलिए यहाँ से एहराम बांधना ज़रूरी है। तो ये जितने भी हरम हैं ये मुराद है बैतुल्लाह से। मसाबतन लिन्नास व अमना, लोगों के जमा होने की जगह और लोगों के अमन अमान की जगह हमने बताई। इस पर उलमाए किराम के दरमियान के अंदर में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, अइम्मा मुज्तहिदीन के दरमियान के अंदर में। एक तरफ इमाम अबू हनीफा है, दूसरी तरफ तीनों अइम्मा हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल। ये तीनों का कहना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हरम को जब मामून बनाया, अमन अमान की जगह बनाई, तो किसी कातिल को भी हरम के अंदर में कत्ल करना जायज़ नहीं है, उसको सज़ा देना जायज़ नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ये इजाज़त दी जाएगी कि कोई आदमी कत्ल करे और कत्ल करके भाग करके अगर हरम के अंदर में आ जाए और हरम के अंदर में दाखिल होने वाला मामून और महफूज हो जाए और उसके ऊपर में कोई सज़ा नहीं मिल जाए, तो ये हरम जो है वो कातिलों का अड्डा बन जाएगा। सारे लोग मर्डर करेंगे, कत्ल करेंगे और सीधे आकर के हरम के अंदर में पनाह ले लेंगे, बच जाएंगे। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों चीज़ों का ख्याल रखा। ये फ़िक़्ह हनफी की खुसूसियत है, दोनों चीज़ों का ख्याल रखा। एक तरफ कातिल का ख्याल रखा और दूसरी तरफ हरम का भी ख्याल रखा कि अगर कोई आदमी कत्ल करके कातिल अगर हरम के अंदर में दाखिल होता है तो उसको हरम के अंदर में कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको मजबूर किया जाएगा कि वो हरम से निकले। जब हरम से निकल जाए तो फिर उसके बाद में पकड़ करके उसको कत्ल किया जाएगा। ये एक मुख्तसर बात अर्ज़ कर दूँ जी, 1979 के अंदर में, यानी 80 के अंदर में एक कम, 79 के अंदर में 400 आदमी थे, 400 आदमियों ने कब्ज़ा कर लिया था। ये हरम शरीफ के अंदर में कब्ज़ा कर लिया था। पहले ज़माने में इतनी इंक्वायरियाँ और चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता था। अब तो चप्पल भी अंदर ले जाने के लिए देते नहीं है, सामान भी अंदर ले जाने नहीं देते, पहले बिल्कुल खुला था। इन 400 आदमियों ने पहले से जो अपना माल सामान, गैस के चूल्हे ये वगैरह वहाँ रख दिए थे, और उसके बाद में फिर जो है ऐलान कर दिया था, और किसी ने दावा किया था कि इमाम महदी है और इसकी इताअत करो ये वगैरह, और कब्ज़ा कर लिया था। कई दिनों तक जो है इमाम, जो हरम के जो इमाम थे, उनको नमाज पढ़ाने नहीं दिया और घेर लिया था चारों तरफ से, और किसी को भी जो है अंदर दाखिल होने नहीं देते। तकरीबन एक लाख आदमियों को उन्होंने घेर लिया था। उस वक्त के अंदर में ये शाह फैसल था रहमतुल्लाह अलैह, उसने जो है पाकिस्तान से मदद तलब की, और जनरल ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह, ये जनरल था मिलिट्री का, तो उनको भेजा था और उन्होंने जायज़ा लिया पूरा।
जायज़ा हेलीकॉप्टर से पूरा जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद में ये जनरल ज़ियाउल हक ने एक आइडिया बतलाया कि ये मताब जो है मताब, ये मताब नीचे की जानिब के अंदर में है। हम 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर चढ़ते हैं, मताब नीचे की जगह में है। और बेडरूम के अंदर में वो लोग ठहरे हुए थे, नीचे अंडरग्राउंड के अंदर में ठहरे हुए थे। तो ये हुक्म दिया कि पानी छोड़ दिया जाए। बेडरूम के अंदर में नीचे भी पानी छोड़ा, मताब के अंदर में भी पानी छोड़ा। और पानी छोड़ने के बाद में करंट चालू करने के लिए हुक्म दिया कि इतना मामूली करंट चालू किया जाए कि ये जो कब्जा करने वाले हैं उनके पास में हथियार हैं, रिवॉल्वर है, मशीन गन है, तो वो पकड़ न पाए, इतना करंट छोड़ा जाए। ऐसा करंट छोड़ा और उसके बाद में जो हथियार जो थे वो भी गिर गए। और उसके बाद में ये पैराशूट वगैरह पहन करके वो पानी के अंदर में उतर करके उनको पकड़ लिया। पकड़ करके फिर उनको हुदूद हरम से बाहर ले जा करके जो है उनको सज़ा दी गई। तो ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है कि अगर कोई आदमी कत्ल करके वहाँ जाता है तो फिर उसको जो है इस तौर पर मजबूर किया जाएगा कि वो निकले। थोड़ी देर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी थी फ़तेह मक्का के दिन, थोड़ी देर के लिए फ़तेह मक्का के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी थी। इसको यूँ समझो कि जो हुर्मत है, हुर्मत हरम शरीफ की हुर्मत, उसको थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला ने उठा लिया था, थोड़ी देर के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने आज से पहले कभी भी इस हुर्मत को उठाया नहीं और आज के बाद कभी भी अल्लाह तबारक व ताला हुर्मत को उठाएगा नहीं। थोड़ी देर के लिए हुर्मत को उठा लिया। वहाँ कुछ मर्द और औरतें 12 का तस्कीरा आता है हदीस शरीफ के अंदर में, मर्द और औरतें मिल करके कुछ 12 थे। इनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था कि अगर ये हुदूद हरम के अंदर में भी अगर मिले और जहाँ कहीं भी उनको देखो तो उनको कत्ल कर डालो। हुदूद हरम के अंदर में भी इब्नुल अख्तल करके था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ न मालूम क्या क्या नहीं किया था, मुसलमानों को भी न मालूम क्या क्या किया था, वो वाजिबुल कत्ल था। तो देखा कि ये काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ करके दुआ मांग रहा है। पहले मुशरिकीन और कुफार ये भी जाते थे हरम शरीफ के अंदर में और तवाफ भी करते थे, लेकिन नंगा तवाफ करते थे। पहले बता दिया था नंगा तवाफ करते थे। ये कपड़े जिनको पहनकर हमने गुनाह किए, ऐसे कपड़ों को पहनकर थोड़ी अल्लाह के घर का तवाफ कर सकते हैं, इसलिए नंगा तवाफ करते थे। तो किसी ने बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, इब्नुल अख्तल जो है वो काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ करके ये दुआएं मांग रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहीं पर उसको कत्ल करो। तो कत्ल किया गया था उसको। ये थोड़ी देर के लिए था। अच्छा, वहाँ ये जो जगह है, वहाँ का दरख्त, वहाँ का फूल और कांटादार दरख्त भी उखाड़ना जायज़ नहीं। अगर कोई आदमी उखाड़ेगा तो फिर अगर कम है तो फिर कुछ सदका करना पड़ेगा, ज़्यादा अगर करेगा तो हो सकता है कि फिर जुर्म और ज़्यादती बढ़ जाए तो दम भी देना पड़े, अलग बात है। ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे कि भाई हरम का कांटा और हरम का दरख्त वगैरह उखाड़ा नहीं जाएगा, हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इदखर की जो है इजाज़त दी जाए। इदखर एक घास है, घास का नाम है इदखर, इसकी इजाज़त दी जाए कि इसको उखाड़ा जाए। इसलिए कि ये इदखर घास 2 किस्म के लोगों को काम में आता है। एक तो जो हद्दाद, जो लोहार है, वेल्डिंग करने वाले, वो अपने लोहे को जो गर्म करने के लिए आग और कोलसा वगैरह जब सुलगाते हैं तो वो पहले वो इदखर के घास को सुलगाते, फिर उसके बाद में बड़ी लकड़ियों को सुलगाते, तो इनको ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा ये कि ये जो गरीब किस्म के जो लोग हैं जिनके पास में छप्पर मारने के भी नहीं होते, तो वो ये घास लाते हैं इदखर और उसके बाद में अपने छत के ऊपर में लगाते हैं। तो या रसूलल्लाह, इसकी इजाज़त दी जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी। एक बात मुख्तसर से अर्ज़ कर दूं कि ये हदीस शरीफ के अंदर में भी आता है, इदखर घास का तज़किरा हदीस में भी आता है
اور میری یہ عادت ہے کہ قرآن میں اور حدیث کے اندر میں ایسی چیزیں جو ہوتی ہے تو وہ لا کر کے بچوں کو بھی بتلاتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہم سنتے کئی سالوں سے سنتے ہیں ماسا ماسا اتنا ماسا ہو, یہ چاندی اتنا ماسا ہو, سونا اتنا ماسا ہو. اب بچوں کو پوچھتے ہیں دوبارہ اور مشکات پڑھنے والے بچوں کو کہ ماسا کس کو کہتے ہیں, نہیں معلوم ماسا کس کو کہتے ہیں. دیکھا ماسا چول اٹھی نے کہوائی, کونے کہوائی چوڑ اٹھی, نیچے سے لال ہوتی ہے اور اس کا سر جو ہے اوپر کالا ہوتا ہے. چلوٹھی جس کو یہ ایک قسم کا ناپ ہے, تو یہ اس کا وزن 1 گرام کے برابر ہوتا ہے. اس لیے پرانا جو یہ تھا تولا, یہ 12 ماسا کا تولا تھا, 12 ماسا کا تولا. علماء کرام نے اس کا وزن کیا تو 12 گرام ہوا. تو پرانا تولا 12 گرام کا, 12 ماسا کا, اور نیا جو تولا ہے وہ 10 گرام کا, 10 ماسا کا. خیر, تو یہ تو بیچ کے اندر یہ بات آ گئی. یہ اذخر حدیث کی کتابوں کے اندر میں آتا ہے. تو میں کئی مرتبہ گیا اور تلاش کیا کہ کہیں سے ملے, تو کسی نے اب جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو کھیتی کا ان کو نہیں معلوم, پڑھے لکھے لوگوں کو کھیتی کا نہیں معلوم ہے نہیں. اب مان لیں کہ اگر کوئی پڑھا لکھا بھی ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, یا صاحب کی طرح لیکچرر ہے اور کھیتی کرنے والے ہیں, تو کھیت کے اندر میں کون کون سی گھاس ہوتی ہے وہ سب معلوم ہوتا ہے. اور دوسرے آدمی کو اگر پوچھیں گے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ گھاس, دیکھیے یہ کہا کہ یہ گھاس, یہ کیا کہ یہ گھاس. لیکن گھاس کے اندر میں بھی فرق ہوتا ہے کہ آ چینگو کہوائی, آ ہومو کہوائی, آ ہرکھیو ہوں کہوائی, جیپٹی کہوائی, الگ الگ نام ہوتے ہیں. اب ڈکشنری اور لغت لکھنے والے ہر چیز کے لیے کہیں گے کہ یہ گھاس ہے, گھاس ہے, گھاس. تو بہت سے لوگوں کو پوچھا, نہیں پتہ چلا. ابھی 2 سال پہلے جب حج کے لیے گئے تھے اور کمیٹی کی وجہ سے گئے تھے تو ماشاءاللہ بہت لمبا وقت ملا وہاں, تقریباً 32-33 دن ٹھہرنے کے لیے وقت ملا یہاں عزیزیہ کے اندر میں. تو وہاں بہت سے لوگوں کو پوچھا. ایک شیخ تھا, وہ ریاض کا تھا, اس نے مجھے نمبر بھی دیا, پھر بعد میں اس کی ضرورت نہیں پڑی. تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ کل میں آؤں گا اور پھر اپنے جائیں گے پہاڑ پر اور میں تجھے بتاؤں گا. پہاڑ پر جائیں گے اور بتائیں گے. گھاس کہاں ہوگا, پہاڑ پر ہوگا, سٹی پہ تھوڑا ہوگا. اس میں اس کے بعد میں ہمارے کفیل کا جو لڑکا ہے شیخ, اس سے بھی سلسلے کے اندر میں بات ہوئی. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی کے قریب کے اندر میں اگر تو جائے گا تو وہاں پر وہ انڈین پاکستانی لوگ جو بیچتے ہیں نا, یہ میدی بیچتے ہیں یا اس طریقے سے وہ پودینہ بیچتے ہیں یہ وغیرہ, ان کی یہاں مل جائے گا. تو وہاں مکہ مکرمہ میں تو نہیں ملا, اور وہ سعودی جس نے آنے کے لیے کہا تھا وہ بھی نہیں آئے. مدینہ منورہ کے اندر میں گئی, اسکھر کوئی جانتا ہی نہیں کہ اسکھر کس کو کہتے ہیں. ایک بنگالی مولانا ملے تو انہوں نے کہا کہ مول صاحب اسکھر مت بولو, کوئی نہیں سمجھے گا, اذخر بولو. اسکھر کا کیا کر دیا, اذخر بولو. وہ 2-3 بنگالیوں کے پاس میں گیا, دیکھا تو 5-5 ریال کے اندر میں پوڑی کی بیچتے تھے. وہ میں لایا یہاں لایا, یہ اسکھر کہو یا اذخر کہو. پھر جب بھی یہ حدیث شریف کے اندر میں جب یہ سبق آتا ہے تو اسے اگلے دن میں لے جاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ ہے اذخر. اس کی اجازت دی ہے اکھاڑنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین وجعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا. اچھا, اب قرآن پاک قصے کی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھتا, قصے کا پابند نہیں ہے. جتنی ضرورت پڑتی اتنی وہ بات لاتا ہے, دوسری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. وجعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا, ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ بنایا, یعنی حرم شریف کو, اور امن کی جگہ بنایا. اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. کبھی بیت اللہ کے بننے کا کوئی ذکر تو آیا نہیں. شروع سے لے کر کے ہم پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ سے لے کر یہاں تک ہم پڑھتے ہیں, بیت اللہ کے بننے کا تذکرہ نہیں آیا. بیت اللہ کے بننے کا تذکرہ آگے آئے گا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی, یہ آگے آئے گا. بیت اللہ بن گیا. بیت اللہ بننے کے بعد
नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया। अच्छा, अभी कल बताया था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा को यहाँ छोड़ा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते रहते थे खबर लेने के लिए, मुल्क शाम के अंदर में वो रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि यहाँ बैतुल्लाह की जो बुनियाद है इसके ऊपर में इमारत बनाना है। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि मुझे एक हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है, कई अरसा हो गया कि बैतुल्लाह की जो ये बुनियाद है, इमारत है, इसको हम बनाएं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेसन का काम किया, कड़िया का काम किया बनना, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मजदूर का काम किया। अब बैतुल्लाह की बुनियाद पहले से मौजूद थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत आदम ने बनाया था। नीचे पत्थर थे, ऊपर मिट्टी थी और दीवारें वगैरह मिट्टी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के अंदर में वो ख़त्म हो गया था। बाद के अंदर में जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ये बुनियाद पड़ी रही, और उसके बाद में अल्लाह ताला ने हुक्म इनको दिया। अब ये इमारत तो थी और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर के बताया। इसलिए कि ये जो बैतुल्लाह की जो जगह है, आप जितने भी गए हैं वो देखते हैं कि चारों तरफ पहाड़ है और चारों तरफ ऊंचाई है, और काबतुल्लाह जहाँ पर है वो हिस्सा नीचे का है। तो ये गुबार की वजह से और रेत की वजह से ये हिस्सा दब गया था टीले के नीचे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर के बताया कि ये रेत का जो टीला है, इस टीले के नीचे काबतुल्लाह की बुनियाद है, यहाँ बुनियाद रखी हुई है। ये तो इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद वाली आयत के अंदर में किया कि वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल। अच्छा, वह आयत ना, अब ये यूँ समझो कि बैतुल्लाह बन गया। बैतुल्लाह की बुनियाद जब ऊंची हुई तो जाहिर बात है कि जब दीवार ऊंची हुए तो फिर उसको आदमी को जो बनाने वाला है उसको कुछ चाहिए ऊंचाई के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए ये जो मकाम है, मकाम इब्राहिम, जो पत्थर है, ये पत्थर अल्लाह ताला ने भेजा। और उलमा किराम ने लिखा है कि हजरुल अस्वद, ये जो पत्थर है ये भी जन्नत से आया, और ये मकाम इब्राहिम के पास में जो पत्थर है ये भी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जन्नत से लाए थे। मुफ्ती सईद साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा हुआ है। और इसकी खुसूसियत ये थी कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी तो ये पत्थर ऊंचा होता था, ऊंचा होता था। फिर जब मान लो कि उस पत्थर के ऊपर में से नीचे उतरने की ज़रूरत पड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो पत्थर नीचा हो जाता था। ये खुसूसियत थी इसके अंदर में। और इसके ऊपर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान भी था, लेकिन उलमा किराम ने लिखा है कि वो असली जो निशान था वो निशान तो ख़त्म हो गया। आज भी जो वो एक बॉक्स के अंदर में रखा हुआ है, और काबतुल्लाह का जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा के सामने रखा हुआ है, ये है मकाम इब्राहिम। तो ये जब इमारत बन चुकी तो अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने इब्राहिम और इस्माइल से ये वादा लिया था कि अब नमाज पढ़ने वालों के लिए और तवाफ करने वालों के लिए और एहतिकाफ करने वालों के लिए इस घर को साफ रखो। वह आहिद ना, हमने वादा लिया इब्राहिम से और इस्माइल से, अंतहीरा बैतिया, मेरे घर को पाक साफ रखे तवाफ करने वालों के लिए, एहतिकाफ करने वालों के लिए और नमाज पढ़ने वालों के लिए। वही क़ाल इब्राहिम, और याद करो जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्ब इजअल हाज़ा बलदन आमिनन, बन गया मकाम काबतुल्लाह बन गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना, वर्जुक अहलहू मिनत समारात, और इसके रहने वालों को भी फल अता फरमा जो उनमें से ईमान लावे और आखिरत के दिन पर ईमान लावे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी कि यहाँ के रहने वालों को अल्लाह ताला फल खिलावे। तो एक तफसीर तो ये लिखी हुई है कि ताइब से फल आते हैं, मक्का मुकर्रमा, ताइब के अंदर में फल बहुत होते हैं। और दूसरी तफसीर लिखी है कि दुनिया भर के फल यह मक्का मुकर्रमा के अंदर में आते हैं, आज भी आते हैं। और समारात का एक तर्जुमा फल का होता है, और समारात का नई अरबी के अंदर में, जदीद अरबी के अंदर में समारात कहते हैं प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है,
वहाँ से जो माल एक्सपोर्ट होता है, बनता है, उसको भी समरात कहते हैं। इसलिए सूरह कसस के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वयुज़बा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन, वयुज़बा इलैहि, हरम की तरफ खींच खींच करके लाया जाएगा, समरातु कुल्लि शैइन, हर चीज़ का निचोड़ और हर चीज़ का फल। शजरिन नहीं कहा, दरख्त का फल लाया जाएगा ये नहीं कहा गया, हर चीज़ का निचोड़ लाया जाएगा। तो ये प्रोडक्शन दुनिया भर की सारी चीज़ें मक्का मुकर्रमा के अंदर में मिलती है। तो दुआ के अंदर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ महदूद तंगी कर दी, ये फल, ये खाने की चीज़ें ईमान वालों को मिले, यकीन वालों को मिले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम इसके अंदर में तंगी नहीं करते, खाने पीने की और पहनने की चीज़ों में तंगी नहीं। ईमान वाला भी पीता है, ईमान वाला भी खाता है और बेईमान वाला भी खाता है, सांस लेता है, हवा लेता है, ईमान वाला भी लेता है, दूसरा भी लेता है। तो फल जो है, खाने की चीज़ें हैं, ईमान वाला भी लेगा और दूसरे लोग भी लेंगे। लेकिन इतना है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन कफरा, जो मेरी नेमतों का इनकार करेगा, मेरा इनकार करेगा, फउमत्तिउहु कलीलन, उसको भी मैं दुनियावी फ़ायदा तो दे दूंगा जैसा कि ईमान वालों को मिलेगा, लेकिन फिर बाद में उसको मजबूर करूंगा आखिरत के अंदर में जहन्नम की तरफ, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। और आखिरी बात, वह इब्राहिमुल कवाइदा, याद करो जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की बुनियाद उठा रहे थे, और इस्माइल भी। ये अदब का तकाजा है कि अगर बड़ों के साथ में अगर हम हैं तो पहले बड़ों का तज़किरा किया जाएगा, फिर हमारा तज़किरा किया जाएगा। ये है, पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र बाद में फरमाया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो दोनों को साथ में जिक्र कर सकता था कि वइज़ यरफ़उ इब्राहीम व इस्माइल अल कवाइद मिनल बैत, ये कर सकता था। ये अदब सिखलाया अल्लाह ताला ने। बन गया काबतुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तलकीन फरमाया कि अब अल्लाह से दुआ मांगो, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कोई भी बड़ा काम हो जाए तो कबूलियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से, इसलिए कि वही अल्लाह तबारक व तआला बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। इसके बाद की जो आयतें हैं जिसका तर्जुमा किया गया था, कल इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे।